371 that was introduced. And Article 371 is a safeguard to each state to save their identity, to save their land, the tribal land, their culture, their tradition. और उसी सीरीज में 371 में गोवा का आता है 371I, और जो मैंने अमेंडमेंट अभी इंट्रोड्यूस किया है बिल, इट विल बी 371IA, 371IA, और इसमें दिस विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, जिसमें वी हैव डिफाइंड दैट देयर विल बी अ काउंसिल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल, GSDC, गोवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल। बिकॉज जितना भी अभी बचा है, हमारी जमीन, हमारे रिवर्स, फॉरेस्ट, हिल्स, ऑर्चर्ड लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, जो बार बार कायदा लाता है, जो हमारा PCC प्रेसिडेंट बताएंगे, अमेंडमेंट टू द रीजनल प्लान, अमेंडमेंट टू TCP एक्ट 1974, जस्ट टू फैसिलिटेट, जो मैंने मार्केट फोर्सेस बोला था, जो बैग्स लेके आते हैं पैसों के गोवा में, उनको हेल्प करने के लिए एक कायदा बार बार चेंज कर रहे हैं गोवा असेंबली में विद अ ब्रूट मेजॉरिटी बाय बाइंग MLAs. एंड दिस इज व्हेन वी ब्रिंग दिस अमेंडमेंट, when we have that council, whichever sarkar is there in Goa, they will have to work within the realms of this Article 371IA. We have defined a council. जैसा council है for different states. These constitutional guarantees are there for Sikkim, Himachal, Mizoram, Arunachal. For the first time, we are bringing this constitutional amendment. It has been introduced on 5th December 2025, and we are very hopeful that this bill will be passed in the Lok Sabha as well as Rajya Sabha. We have been meeting various members of Lok Sabha, opposition parties, and they have been very, very positive on this. So this is a detailed bill. We will be sharing with you a copy of this. इसमें everything we have defined, be it the rights of the traditional communities, rights of the fishermen, rights of the scheduled tribe, rights of the scheduled caste, OBCs, हमारे जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स है, शिगमो है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारे जो फोक सॉन्ग्स है, फोक डांसेस हैं, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइड, द वेरी आइडेंटिटी ऑफ गोवा, द डेफिनेशन ऑफ हु इज अ गोवन, उसको हम लोगों ने पूरा डिफाइन किया है. एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक गोवन, जिसको हम गोयकार बोलते हैं, वो गोयकार नहीं बचा तो गोवा नहीं बचेगा. एंड अ कल्चर विच इज द रिच कल्चर ऑफ गोवा, जो गोयकारपन बोलते हैं, when we include all these particular things, the culture, tradition, heritage, our folk dances, religious festivals, we call it a dais. In Cockney, dais is a very rich word. It encompasses everything that Goa stands for. So we will be sharing this bill with you. I now request our PCC President, Shri Amit Patkar, to speak on the bill. धन्यवाद कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस जी. हमारे इंचार्ज, AICC के इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरे जी ने स्टार्टिंग में एक वीडियो प्ले किया, और उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब गोवा आए थे, जब उन्होंने गोवा वासियों को जो वायदा दिया था कि वो जब चुन के आएंगे वो स्पेशल स्टेटस बिल लाएंगे और उनका वो सौभाग्य होगा. एक्चुअली हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 12 साल, सेंटर में 12 साल और स्टेट में 14 साल, ये डबल इंजन की सरकार ने पूरे गोवा को बर्बाद किया है. जो हमारे सांसद है जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 जो लाया है,
मुझे लगता है कि आज ये बिल का महत्व क्या है, गोवा व्हाट दिस स्पेशल स्टेटस बिल विल protect Goa. I think it is very important, and so that we should understand. Now, this Goa special status issue is a constitutional warning from India's smallest state facing one of the largest development. Goa is being pushed beyond its ecological and social carrying capacity, and existing laws have clearly failed. A bill which is coming to the parliament because policy of the state government has failed in Goa. Regulations have failed, and the political will has failed the people of Goa. अगर हम टूरिज्म वर्सेस पॉपुलेशन अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो आज रफली गोवा का पॉपुलेशन करीबन 16 लाख है, और अगर एनुअल टूरिस्ट इनफ्लो अगर हम देखेंगे सो दैट इज रफली अबाउट 1.08 करोर्स, which is roughly about 7 to 8 times the resident population of Goa. For months every year, Goa functions with a floating population larger than any Indian major cities across the country. No states that small can absorb this pressure without constitutional protection. Expecting Goa to do so is administrative negligence. अगर हम माइग्रेशन वर्सेस डेमोग्राफिक चेंज अगर देखेंगे तो आज नेटिव गोवा के जो वासी हैं वो आज हाफ द परमानेंट पॉपुलेशन हो चुके हैं. दिस इज नॉट अबाउट हॉस्टिलिटी टू माइग्रेंट्स, इट इज अबाउट लैंड एक्सेस, इट इज अबाउट कल्चरल सर्वाइवल. जो हमारे एमपी साहब ने बोला, हमारा दाइज प्रोटेक्ट करने की आज जरूरत है. इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट, ये जो उन्होंने बिल लाया है, दिस विल नॉट एक्सक्लूड एनीवन बट इट विल प्रोटेक्ट दोज हु आर बीइंग इरेज्ड बाय द पॉलिसी साइलेंस. आज गोवा का लैंड डिस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे, लैंड एंड अर्बनाइजेशन अगर देखेंगे तो गोवा के टोटल लैंड इज रफली अबाउट 3,702 स्क्वायर किलोमीटर्स. 62% of Goa is already urban, one of the highest urbanization rates in across India. बट आज अगर हम गोवा की जमीन अगर देखेंगे तो लैंड इज बीइंग आस्क्ड टू सर्व टूरिज्म, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइग्रेशन एंड इंडस्ट्री. When land is finite and demand is unlimited, only the constitution can act as a regulator to protect the interests of Goa and to protect the people of Goa. आज उन्होंने बोला कि डबल इंजन की सरकार के तहत गोवा में एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है. गोवा में अगर हम देखेंगे तो करीबन 160 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है. फॉरेस्ट कवर देखेंगे तो 2,219 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 60% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया. मैं कुछ फैक्ट्स तो आपके सामने रखना चाहता हूं. लास्ट ईयर जब सेंटर ने जब डेटा रिलीज किया था तब एक डेकेड का, दैट इज फ्रॉम 2010 to 11, the Goa's total tree cover was 334 square kilometer, and by 2021-22 the total tree cover has fallen down to 258 square kilometers. मतलब 76 square kilometers forest has been cut in one decade, which is roughly about 22%. Now, why these forests are cut? Forests are cut because, as our member of parliament said, that आज गोवा में this government is trying to convert Goa into a coal hub. When peak COVID time पे जब 3 linear projects तब लाए गए, तब जब लोग अंदर, जब लोगों को बोला गया कि आप घर में रहो, तब पूरे ट्रीज डिस्ट्रक्ट करके रफली अबाउट 76 स्क्वायर किलोमीटर्स के पेड़ काटे गए. अगर हम देखेंगे तो इको सेंसिटिव जोन स्पैनिंग रफली अबाउट 1,460 स्क्वायर किलोमीटर्स. वेस्टर्न घाट्स देखेंगे तो करीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है. अभी ये सारी चीजें, दीज आर नॉट नॉन रिन्यूएबल सिस्टम्स. एक बार वंस मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स एंड खाजन लैंड्स आर डिस्ट्रॉयड, वी कैनॉट ब्रिंग देम बैक. आज गोवा का जो टीसीपी अमेंडमेंट
जो ये सरकार बार बार ला रही है। 2012 में जब बीजेपी की सरकार जब गोवा में आई थी तो उन्होंने गोवा के लोगों को वायदा किया था कि 100 दिन के अंदर हम नया रीजनल प्लान लाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज बीन 14 years this government is not getting a new regional plan, but they are getting systematic amendments to the TCP Act so that वो amendments लाके गोवा का जो लैंड है वो कन्वर्ट करके उसमें हाई लेवल का करप्शन कर पाए। पिछले 10 साल में अगर देखेंगे तो दे हैव गॉट अमेंडमेंट कॉल्ड एज 17(2) where roughly about 26.5 lakh square meters has been converted. The matter went to court and court struck down this amendment of 17(2). उसके बाद ये करप्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार ने और एक अमेंडमेंट लाया कॉल्ड एज 39A, और 39A के तहत उन्होंने आज रफली 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन ऑलरेडी दे हैव कन्वर्टेड and roughly about 32 lakh square meters is provisionally approved. That amendment is still challenged in the court, and I'm sure that court will also struck down this second amendment. But the problem is we have to understand कि ये amendment के तहत ये कौन सी जमीनें convert करते हैं। The lands basically are CRZ, no development zone, natural cover, forest land, agricultural land, khazan land. So all the lands which we need to protect, which will protect the identity of Goa, this corrupt BJP government is just about to sell the land of Goa। और roughly अगर हम आंकड़ा अगर देखेंगे, जो ये इन्होंने करीबन 68 लाख स्क्वायर मीटर्स जगह जो इलीगली गेटिंग दिस अमेंडमेंट जो कन्वर्ट की है, उसका रफली आंकड़ा 3,500 करोड़ रुपए का ये स्कैम है। एंड अगर मैं पिछला जो सीएजी का फाइंडिंग था, दिस वी आर नॉट सेइंग, बट सीएजी फाइंडिंग्स के तहत जून में जो उनका आंकड़ा आया था, दे सेड दैट द टीसीपी गवर्नमेंट ग्रांटेड 10.7 लाख स्क्वायर मीटर्स वेर इन 2,147 crores the state government lost as revenue. So one side they are selling lands, doing corruption, and the other side the state is losing on revenue. I think this bill, what we have introduced, I think this will protect the identity of Goa. This will protect the destruction which is happening in the state of Goa. जो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो हम बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं। आपने वीडियो देखा, 12 साल पहले मोदी जी ने बोला था कि वो बिल ये लाएंगे, स्पेशल स्टेटस गोवा को देंगे। बट दुर्भाग्य की बात है 12 साल हो गए, इसको कोई नामो निशान नहीं था। आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बिल लाया है एंड इट प्रूव्स कि कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है। ये बिल जब तक पास नहीं होता तब तक हम गोवा में आंदोलन करेंगे, संसद से लेके रोड तक। जब तक ये बिल पास नहीं होता हम ये मुद्दा पूरे गोवा में उठाएंगे। एनी क्वेश्चंस? Any questions? आपने जैसे कि वहाँ एनवायरमेंटल कल्चर का इश्यू उठाया जो है, तो कल्चर एनवायरमेंटल का जो देखा जाए तो अरावली पर्वत का भी उठा था। जस्ट लाइक आपका ये बता रहे हैं कि इतने सारे फॉरेस्ट और पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं और नदियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो लेकिन आप इस आंदोलन को उठाने की बात कर रहे हैं, तो गोवा तक ही सीमित रखेंगे या इसको ऑल ओवर हर जगह जाकर के आंदोलन उठाएंगे? हमारे तो गोवा में टाइम एंड अगेन हम लोग ये आंदोलन उठाते रहते हैं, हम ये इश्यूज उठाते रहते हैं रिगार्डिंग लैंड कन्वर्जन्स। वी हैव बीन टेकिंग अप द इश्यूज इन द स्ट्रीट्स ऑफ गोवा, बट वी आर गेटिंग दिस अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट सांसद तक भी ये आवाज जाए। हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी आएगी, कोई भी सरकार आए इन फ्यूचर, बट देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉर्डर लाइन। ये लिमिट के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, जो भी सरकार है। मतलब आप इसको कोई भी कायदा नहीं लाएंगे फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन के लिए। तो आपका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस तरह का बिल पास कराना है? हाँ, एंड ऑल्सो स्टॉप द डिस्ट्रक्शन। एक मिनट, जो एमपी साहब ने जो बिल संसद में लाया है
वो बिल अभी तक जो बातें नहीं हुई है, जो गोवा के लिए जरूरी है, ये संसद में पास होना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि जिस आधार पे मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि हम जरूर इस तरीके का पैकेज देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। और जिस तरीके से पूरे गोवा में वहाँ पे कल्चर रहो, पर्यावरण की बात रहो, सब पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए हमको संसद में, तो पार्लियामेंट में हमारे एमपी लड़ रहे हैं, बिल वहाँ इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन हम स्टेट लेवल पे भी, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी, उसको मजबूती के साथ वो आगे बढ़ाएंगे। किसी भी हालत में ये भी मंजूर होना चाहिए और इसी के तहत गवर्नमेंट को हम ये दिखाएंगे ये करना जरूरी है। इसलिए हम आंदोलन वहाँ पे भी स्टेट लेवल पे खड़ा करेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं करती है, जल्द से जल्द फैसला नहीं करती है, तो फिर हमको आगे कदम आंदोलन की ये करना पड़ेगा। वो गोवा के अंतर्गत रहेगा, ये पूरे देश में करने की जरूरत नहीं रहती। गोवा स्टेट के लिए है, तो गोवा में हम वहाँ के जनता को साथ में लेकर हमारे सब कांग्रेस पार्टी वहाँ पे आंदोलन करेगी। हेलो, ठाकरे साहब और पाटकर साहब, तीनों लोगों से सवाल है कि जो स्पेशल स्टेटस बिल गोवा के मद्देनजर आपने पेश कर दिया है, गोवा की अनूठी पहचान और अव्यवस्थित विकास को बचाने के मद्देनजर जो मोटे तौर पर मैं समझ पा रहा हूँ ये बिल है। आपने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक संग्राम करेंगे, यलगार करेंगे, और इस पे सरकार के भी कई मंत्रियों ने, चाहे श्रीपद नाइक की बात कर लें, मोटे तौर पर उन्होंने भी समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन सदन के भीतर समर्थन उन्होंने नहीं किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को खासतौर पे, और सोनिया जी को भी गोवा से बड़ा लगाव रहता है, लोग जाते रहते हैं। तो क्या राहुल जी और प्रियंका जी भी आपके इस संग्राम में कूदेंगे, और बीजेपी के भी कई मंत्रियों से, नेताओं से आप लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे? गोवा के बारे में जो भी हमारे नेतृत्व है, राहुल जी रहो, सोनिया जी गांधी रहो और हमारे खरगे साहब रहो, उन्होंने गोवा के हित के बारे में सोचा है। अभी तक राजीव जी गांधी से थे उस वक्त, आपको पता है कि किस तरह के गोवा को अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था इंदिरा जी से। तो ये सभी बातें देखते हुए गोवा के बारे में उनका जो फीलिंग है कि गोवा की सिचुएशन जो है वहाँ पे बनाए रखने के लिए जो भी कानून बनाना जरूरी है वो बनाना चाहिए। उसको पूरी तरह वहाँ की जनता को सपोर्ट है। ये समस्याओं के बारे में हमारे एमपी साहब ने, हमने उनको अवगत किया है और हमें पूरा यकीन है कि गोवा के हित के लिए पूरी तरह एमपी साहब ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया है उसके पीछे रहेंगे और पूरी तरह गोवा की जनता के साथ राहुल जी और वहाँ पे सोनिया जी गांधी और प्रियंका जी खड़ी है। सर, इसमें जस्ट एक ऐड करना चाहूँगा। जब हम लोगों ने, सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने ओथ लिया आफ्टर 2024 इलेक्शंस, उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मुझे बुलाया और बोला देयर इज अ डिस्ट्रक्शन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। एक गोवा में है, लक्षद्वीप में है, अंडमान में है, आप मूवमेंट से आए हैं, फौजी हैं आपने कुछ करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगली। कैसा करेंगे वो, आई विल बी वर्किंग क्लोजली विथ यू। और वहां से ये स्टार्ट हो गया। एंड बिफोर इंट्रोडक्शन ये बिल मैंने मैम प्रियंका से डिस्कस किया। शी वेंट थ्रू द एंटायर बिल, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, कौन होना चाहिए। सो शी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गिविंग द फाइनल टच, द क्लियरेंस फॉर द बिल। सर, माय क्वेश्चन इज टू गोवा एमपी मिस्टर फर्नांडिस। सर, आपने बताया कि 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स जो गोवा के अंदर चल रहे हैं, आपने कहा कि वो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए और गोवा को कोल हब बनाने के लिए चलाए जा रहे हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, आप जिस बिल की बात कर रहे हैं उससे अगर वो अमेंडमेंट होती है, लागू होता है, तो गोवा की गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी फंक्शन कर रही है उसमें किस तरीके के चेंजेस आएंगे? ये जो 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स है, डबल ट्रैकिंग of railways, expansion of roadways और तमनार project, these are directly connected with the transportation of coal। पहला सरकार डिनाई कर रही है, अभी उन्होंने मान लिया
already trains are going with coal to the other states. मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट जो था उसको मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी बनाया जब उन्होंने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल पास कर दिया. एक्सपांशन जो रोड्स हैं उसमें ट्रक्स में पूरा कोल जा रहा है एवरीडे. और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला, 6 रिवर्स हमारे नवंबर 2016 में बीजेपी स्टेट सरकार ने सेंटर को नेशनलाइजेशन के नाम पे दे दिया. क्योंकि एमपीए जो मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी जो अभी रिक्लासिफाइड है, उसमें इवन आफ्टर मॉडर्नाइजेशन दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल द एंटायर क्वांटिटी ऑफ कोल जो हमारे हिसाब से 136.1 मिलियन टन है. अभी 12-14 ऑलरेडी हो रहा है. मोर मॉडर्नाइजेशन दे मैक्सिमम दे कैन गो टू 52. सो बाकी कैसा जाएगा? रोड एंड द बैलेंस इज बाय द rivers. One more thing is, Adani had bought this Carmichael mine in Australia. Plus, बाकी कंट्री से कोल आता है एमपीटी में. Some years back उसको कृष्णापट्टनम पोर्ट दिया था, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, which was supposed to handle hazardous coal, hazardous cargo. तो वो छोड़ के वो गोवा में क्यों आ रहा है? गोवा का आइडेंटिटी क्या है? ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, टूरिज्म. क्योंकि माइनिंग तो बंद कर दिया, एग्रीकल्चर वाज डिस्ट्रॉयड. जो बचा है इकोनॉमी इट इज ओनली टूरिज्म, वो भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. अगर पूरा गोवा काला बन गया बिकॉज ऑफ कोल, कौन सा टूरिस्ट आएगा गोवा में? नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इज द स्टेट सरकार विच एवर मे बी, इवन इफ दे हैव ब्रूट मेजॉरिटी, जैसा अभी एमएलएस खरीदा, सब कुछ किया, to ensure they pass these amendments or whatever to the existing TCP Act. उसके बाद भी they will not be able to destroy because we are putting a constitutional guarantee. वह काउंसिल रहेगा जैसा मिजोरम में है, अरुणाचल में, हिमाचल, सिक्किम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हम लोग डाल रहे हैं. Where representatives of different communities, traditional communities, scheduled tribe, scheduled caste, ओबीसी, फिशरमैन प्लस एग्रीकल्चर, उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहेंगे, 10 सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे. देयर विल बी 6 representatives of the central ministries. So it will be a very broad representation which will ensure that state sarkar will not be able to do any destructive policy in the state. अमित जी, जैसे अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार गोवा के कोल लैंड बनाना चाहती है, उस बीच कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए गोवा और कर्नाटक के बीच में जो सिंगल लाइन है केंद्र सरकार से डबल करने जा रही है, उस बीच में 26 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर बाघ, तेंदुए, रीछ, भालू पाए जाते हैं. इसको लेकर भी स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया. इसमें कांग्रेस क्या करेगी? जो डबल ट्रैकिंग का जो मुद्दा है, इनफैक्ट कांग्रेस इज द ओनली पार्टी हु इज फाइटिंग दिस ऑन ग्राउंड. जैसे उन्होंने बोला कि गोवा इज अ टूरिज्म हब, और वहां पे जो पोर्ट था, अगर ये सरकार चाहती तो उस पोर्ट को ग्रीन पोर्ट बना सकती थी. बट ईस्ट कोस्ट छोड़ के जस्ट टू केटर अडानी, जस्ट टू हेल्प अडानी, क्योंकि गोवा से लेके कर्नाटका, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दिस कोल इज गोइंग टू कर्नाटका, बिकॉज ऑल द स्टील प्लांट्स, ऑल द पावर प्लांट्स आर सिचुएटेड इन सेंटर ऑफ कर्नाटका. फ्रेट कॉस्ट फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट विज़ गोवा, उनको करीबन 100 रुपए पर टन का फायदा है. बस अडानी को 100 रुपए पर टन फायदा करने के लिए मोदी सरकार ये डबल ट्रैकिंग का जो प्रोजेक्ट है वो गोवा में जानबूझ के जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रही है. एनजीटी एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी स्टेड, जो आपने 26 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बोला है, वो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी स्टेड. वी आर closely monitoring it, our people are fighting it in the court and we are fighting it on the ground also. करीबन 400 साल पुराने घर are getting destroyed in this double tracking. हमारे लास्ट इलेक्शन में भी ये मैनिफेस्टो में था कि हमारे जब लीडर राहुल गांधी जी जब गोवा आए थे, जब 2022 का जब चुनाव हुआ, तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी वी विल मेक श्योर दैट गोवा डजंट बिकम अ कोल हब. सो कांग्रेस is very firm and we will make sure that Goa is not turned into a coal hub. In fact, they have even defied the Supreme Court findings.
जो हमारा एक एनजीओ है विच हैज बीन फाइटिंग फॉर मेनी इयर्स, ट्रमेंडस सर्विस दे हैव डन, गोवा फाउंडेशन, रेनबो वॉरियर्स, ऐसे काफी एनजीओ एनवायरमेंटलिस्ट है. When Goa Foundation went to the Supreme Court appointed a CEC, Central Empowered Committee. 3-member committee came to Goa. They did extensive study of that and they gave a report saying double tracking nahi hona chahiye. It is economically unviable, it is environmentally destructive. It goes through that corridor which is meant for the animals. Uske baad bhi Modi Sarkar went ahead with this particular double tracking. Thank you.